भाई हैप्पी न्यू ईयर सबको। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। एंड लेट्स होप ये नया साल आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे मौके ले आए, अच्छी चीज़ें ले आए, अच्छी यादें ले आए और बहुत सारा अच्छा काम ले आए। सो ऑलवेज प्रॉमिस योर सेल्फ इन द न्यू ईयर दैट इस साल लास्ट ईयर से बेटर काम करूंगा, कुछ और हो ना हो, लास्ट ईयर से बेटर जरूर काम करूंगा। सो इसी आइडिया के साथ रोटेशनल मोशन शुरू करने जा रहे हैं। एंड मैं आज आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा जो हमने बोर्ड में नहीं करी। ऑलराइट, सो मेनी थिंग्स वे इन विच वी कैन look out for new ideas and new things. So I'm going to focus on that, on new stuff first. So let's start up. The basic idea of rotational motion we already know. कि whenever a rigid body moves around an axis and all particles of that rigid body move on circular paths and the centers of all the circular paths lie on one straight line, then the body is said to be performing rotational motion. हमको इसके आगे बढ़ना है, अब धमाधम आगे बढ़ते हैं। The first thing we know is angular displacement. We all know this from quite some time. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, आई एम गोइंग टू मूव फास्ट एंड दिस इज द एक्सिस, लाइक दिस इज द एक्सिस, और बॉडी टक 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 ऐसा गोल घूम रहा है। सो दिस इज द वे द बॉडी इज रोलिंग, rotating, not rolling. And I am looking at this point P. Let us say at time t equal to t1. And this is the position of point P. And this is R. Let us say this is theta, making an angle of theta with the reference axis. थोड़ी देर बाद टाइम t2 पे टक 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 रोटेट करके ये यहां आ जाता है. Let's call it P dash. This would be at time t equal to t2. And now in this particular case, हम मैकेनिक्स में लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखते थे, पर हियर वील बी लुकिंग एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसने कितना एंगल टर्न किया, अब हमको एंगल में इंटरेस्ट है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज कॉल्ड डेल्टा थीटा. कितना एंगल टर्न किया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा थीटा. ऐसा यूनिट of angular displacement is radian or rotations. And do not even forget for one instant that one rotation बहुत जगह काम आता है. Absolutely sir, no doubt about that. And now we shall go on to speed. हमने linear speed देखा था, v is equal to delta x by delta t, linear displacement upon time taken. Here we are going to look at a new type of speed. We already seen this, so there's nothing new. It is called angular speed, which is denoted as omega, as he rightly says. So average omega is angular displacement upon time, और limit delta t tending to 0 लेकर के मिलता है omega is d theta by dt. And SI unit of omega is radian per second or rotation per second or revolution per second. One rotation या one revolution का अंदाजा ही अपने को 2 pi. So one rotation per second will be equal to 2 pi radian per second. Equivalence हमको अंदाजा है. फिर linear speed, बॉडी पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां से यहां आया, कितना एंगल टर्न किया, डेल्टा थीटा. बट कैन यू सी थोड़ा सा लीनियर डिस्टेंस भी ट्रैवल किया उसने. एंड दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क PP dash. एंड एवरीबॉडी नोस लेंथ ऑफ आर्क इज हाउ मच, R थीटा. भाई गलती से ये थीटा मत लिख बैठना, ये थीटा है, ये दो एंड पॉइंट्स को के बीच में सबटेंड होता हुआ एंगल इज डेल्टा थीटा. सो आर PP dash is R delta theta, and as a result I get linear speed. मस्त इक्वेशन है linear speed का. V, I'm not going into derivations and stuff like that. V equal to R omega. एक बात याद रखें, ये घूमती हुई बॉडी के सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होगा. एक घूमते हुए पंखे के सारे पार्टिकल्स सेम स्पीड पे चलते हैं, बस डिस्टेंस अगर चेंज होता है तो लीनियर स्पीड चेंज होती है.
सब पार्टिकल्स की लीनियर स्पीड सेम नहीं होती बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस will be different. So V is equal to R omega is the relation between linear speed and angular speed. Okay, आगे बढ़ जाते हैं, angular acceleration देखते हैं. अच्छा, इसमें कोई शक आपको? Any shock happening? No, sir. Very well. So let's rotate forward. How do you rotate forward? We roll forward actually. So we are looking at angular acceleration now. Standard stuff. Angular acceleration, जैसे linear acceleration, same quantities. The rate of change of angular velocity, या angular speed, is called angular acceleration. So this is how the things will move. So angular acceleration, we call it alpha. So average alpha is delta omega by delta t, and as a result alpha is d omega by dt. ओके, बहुत ही बढ़िया रिलेशन मिला अल्फा का. ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, एक छोटी सी नोट में आपको याद दिला दूं, अगर तुम्हारा बॉडी यूं घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? जो डायरेक्शन में बॉडी घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमाओ. जैसे फॉर एग्जांपल ये चोपड़ी है, अरे ये चोपड़ी है, ये घूम रही है, अच्छी नहीं घूम रही है आज. ओके, तो जिस डायरेक्शन में घूम रही है ना, उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमाने से अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन is same as delta omega bar. So I don't need to write that. Do I need to write that? No, I don't. Okay, so this is all the idea of angular displacement, angular speed and angular acceleration. फिर चलते हैं equations की ओर, तेरी ओर. Equations for rotational motion. Ladies and gentlemen, I hope you remember. You know, जो काम अब जैसे हमने एनालॉजी निकाला था, V is equal to V0 plus AT. जो काम लीनियर स्पीड करता है लीनियर मोशन में, वो काम एंगुलर स्पीड करता है रोटेशनल मोशन में. जो काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है लीनियर मोशन में, वो काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है एंगुलर मोशन में. यहां लीनियर एक्सीलरेशन, यहां एंगुलर एक्सीलरेशन, और उनको साथ में रख के हमने कुछ इक्वेशंस निकाले थे. यू रिमेंबर? ओमेगा इज ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. सेकेंड, थीटा इज ओमेगा 0 टी plus half alpha t square, and finally omega square minus omega 0 square is 2 alpha theta. अच्छा, कभी कभी कोई पहिया या ऐसा कुछ गोल गोल घूम रहा हो एंड दे आस्क यू टू फाइंड कितने रेवोल्यूशंस हुए या कितने रोटेशंस हुए. सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, लेट्स कॉल इट n, इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन 2 पाई. रिमेंबर दिस, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए. सो योर जॉब इज टू फाइंड थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड यू गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. इज दिस एग्रीएबल? ओके. अच्छा, एक छोटी सी नोट यहां पे ये भी दे रहा हूं. दिस इज जस्ट अ नोट, कीप इट इन माइंड. V इज आर ओमेगा, ये हमको मालूम है, ये स्केलर रिलेशन है. देयर वाज आल्सो अ वेक्टर रिलेशन इफ यू रिमेंबर. V bar is omega bar. What did you say, PK? Omega bar cross alpha. क्रॉस. काफी लोग इसको इंटू बोलते हैं, ये इंटू नहीं है पिंटू, ये आर क्रॉस है ये. ओके. अच्छा, ये नई चीज है जो मैं दिखाने जा रहा हूं. एवरीबडी नोज लीनियर एक्सेलरेशन ए बार, हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं. ए बार इज dv bar by dt. Do I have V bar right here? Yes, I do. So d by dt of omega bar cross r bar. मैंने आपको सिखाया था कि दो चीजों के साथ डिफरेंशिएशन कैसे करें. पहले एक को डिफरेंशिएशन में ले, दूसरे को बाहर रखें, फिर दूसरे को ले, पहले को बाहर रखें. सो व्हाट डू आई हैव हियर? तो मैं पहले ओमेगा बार को बाहर रखता हूं, dr बार बाय dt करता हूं, फिर ओमेगा बार के साथ डिफरेंशिएशन करता हूं cross r bar. Looking at these terms, do you know what dr bar by dt is?
Parallel velocity. Linear velocity. Isn't it V bar? And how much is d omega bar by dt? Alpha bar? I am not going into terrific details, but let me tell you, ये जो ओमेगा बार क्रॉस वी बार है ना, इसका डायरेक्शन, hey, can I take this off? Can I take this off? Yes, sir. This is something that you never saw in the boards. You can confirm it when you want to. Omega bar cross V bar is directed towards the center. Here, omega bar cross V bar is directed towards the center and is called centripetal or radial acceleration. You can call it AC या AR. AC बोलना है AC बोलो, AR बोलना है AR बोलो. And alpha bar cross R bar is directed tangentially, directed along the tangent to the point, and it is called tangential acceleration. So if you notice carefully, linear acceleration is the vector sum of centripetal, ये centripetal है and ये tangential है. So A bar is AC bar plus AT bar and mod A bar is root of AC square. चुपके से आपको एक चीज बता दो, एकदम चुपके से. Yes, sir. अच्छा, किसी को कानों कान खबर ना पड़े. किसी ने मेरे को रोका नहीं कि ये सर क्या आपने रेडियल एक्सिलरेशन सेंट्रीपिटल कैसे लिख दिया इसको. अच्छा, ओमेगा बार क्रॉस वी बार इज ओमेगा वी साइन 90. एंड डू यू नो ओमेगा वी इज आर ओमेगा, तो ओमेगा इज व्हाट वी बाय आर. तो ओमेगा की जगह v बाय आर इंटू वी साइन 90 इज 1. Isn't this? Centripetal acceleration. क्या पहचाना है, क्या पहचाना है. मतलब ये भले ओमेगा बार क्रॉस वी बार है, बट इज एक्चुअली वी स्क्वायर बाय आर. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन. एंड अल्फा बार क्रॉस आर बार इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. आई वांट यू टू एटलीस्ट जॉट दिस इक्वेशन डाउन एंड दिस मच. I'm moving forward. Yes, sir. Sir, जी जी, A is equal to R alpha 1 of omega sir. यही तो है. जब बॉडी के पास कोई सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन नहीं होता तो सिर्फ टेंजेंशियल होता है ना. सपोज तूने बॉडी को फोर्स मारा, तू किसकी बात कर रहा है पता, ये उसकी बात कर रहा है जब एक फोर्स लगा रहा था बॉडी को, बराबर, और ये बॉडी ऐसी घूम रही थी. तो isn't this a tangential force? Yes, sir. And because of this tangential force there will only be tangential acceleration. Tangential acceleration. Yes, sir. बराबर. And we used a is equal to r alpha, not omega bar cross v bar. All right. We also use the Yeah. S is equal to Mach. हाँ, that's a different story. All right, can we take this off now? Okay. अच्छा. Yes, sir. And now let's go to the most important part of this chapter. I'm sure you already know it much better. We called this part as moment of inertia. आपको अगर ध्यान हो तो moment of inertia आपके टेक्स्ट बुक में काफी लेट आता है, बट जेई नीट में इट कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन. बाकी ये जो भी मैंने कराया अभी उन सब की वैल्यू बहुत कम है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह की वैल्यू का इंपॉर्टेंस रोटेशनल मोशन में जेई नीट में बहुत ज्यादा है. सो लेट्स डिवोट अ लार्ज अमाउंट ऑफ आवर टाइम टू मोमेंट ऑफ inertia. We call it MI.
though it sounds like mission impossible, but it is absolutely possible. So moment of inertia की जानकारी जिसको हासिल है वो मस्त है. So consider a system of particles, a system of particles, yeah, you can call it a rigid body having masses. मैं सबसे बेसिक फॉर्मूला से शुरू करूंगा. m1 m2 टक 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 mn and situated at distances r1 r2 tuck 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 rn from the axis. Yes, sir. I hope you remember. कोई भी तुमको बोले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर, व्हाट आर यू गोइंग टू आस्क हिम? Which axis? Not with axis. Isn't that a really lovely idea? So suppose ये एक्सिस है, this is my axis, ये m1 है, ये m2 है, टक 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 ये mn है. ये यहां से यहां का डिस्टेंस है r1, यहां का डिस्टेंस है r2 एंड यहां का डिस्टेंस है rn. Then ladies and gentlemen, what do you think is the moment of inertia of this system? Very lovely equation. Moment of inertia of this system is, I hope you are paying attention, I is m1 r1 square plus m2 r2 square plus tuck 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 plus mn rn square. Okay, so this is what is the equation for moment of inertia, ladies and gentlemen. So I is m1 r1 square plus m2 r2 square plus tuck 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 plus mn r square, and if you want you can write it as a piece of summation. Time pass है ये, mi ri square I is equal to 1 से लेकर n तक. So अगर कोई मुझसे पूछता है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कैसे करूं, फॉर्मूला तो ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले. सिंपल, एकदम सिंपल. मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर. मैटर इज क्लोज्ड. Alright, so this is how moment of inertia is found out. हमेशा ये भूलना नहीं कभी भी. ऐसा यूनिट of I is kg meter square. Okay, and we have one more quantity called radius of gyration. Radius of gyration का साधारण इक्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और फॉर्म है, I is mk square and therefore k is root of I by m, where I is the moment of inertia of the body, m is the total mass of the body. And अगर आपको सर ये m1 r1 के फॉर्म में ले आओ ना सर, ओके, तो तुम भी ये देख ही सकते हो, रूट ऑफ r1 square plus r2 square plus tuck 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 plus rn square the whole by n. Now people ask me, sir, radius of gyration actually होता क्या है? Okay, let me explain it in a clean way. Can I take this off now? Let me explain what radius of gyration is. The definition says radius of gyration is the distance of a point mass from the axis which would have the moment of inertia same as that of the body. सर क्या इसका इंग्लिश में कुछ मतलब समझ में नहीं आया. अच्छा, सपोज ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और ये उसका एक्सिस है, एंड इस पूरे बॉडी का मास है m, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट अस से I is whatever, mr square या whatever. तो सर इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन कहा आया? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ पॉइंट मास जिसका मास ये पूरे बॉडी जितना है, कितना मास है इसका m, और इस मास को इस डिस्टेंस से के डिस्टेंस पे रखोगे तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो इस बॉडी का मिला आपको. दैट इज द प्राइम रीजन
Why? We use I is equal to mk square. इस बॉडी जितना ही मास ये रहा एंड इतने डिस्टेंस पे रखना चाहिए जितने डिस्टेंस पे इसका इस बॉडी का इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया becomes equal to this system का moment of inertia. Alright, so that is the distance which is called the radius of gyration. Alright, अब कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स देख लेते हैं, पर थियरम्स देखने से पहले कुछ चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना जरूरी है ना. यू विल टेल मी सर हमने तो सातों सात लर्न किए थे. वेरी गुड, बधाई हो. I hope you have written this formula and this formula down. I hope you are jotting it in your textbook. Yes, sir. Sir, जी. sir, वो क्या लिखा है? R1 square plus R2 square plus उसके नीचे? Summation नहीं सर, last formula नीचे, सबसे नीचे. यहाँ R1 square plus n Rn square, सर n क्या है? the total number of particles. ओके सर. बराबर लिख दो यहाँ पे n is the number of. Yes sir. Few number of evolution में confuse हो जाएगा. कमाल है. या m1 m2 टक 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 mn. अब ये कितने पार्टिकल्स हुए? n पार्टिकल्स हुए ना, तो n तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है. ओके, सम इंपॉर्टेंट mi फॉर्मूले. ओके, काफी लोगों को अंदाजा होगा ही. रिंग पीपल, MR square. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्सिस. ये कौन सी एक्सिस की बात हो रही श्रीमान? एन एक्सिस which is passing through the center of mass and is perpendicular to the plane of the ring. The surface. जी, एंड इस रिंग का रेडियस है r, मास है m, तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. अच्छा, यही रिंग में अगर ये रिंग होती, आई एम श्योर नाउ डेज यू नो एवरीथिंग. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सपोज अब ये एक्सिस है मेरी, passing through the diameter, passing, R square by 2. very good, passing through diameter, तो I is equal to mr square by 2. ये परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम के मद्देनजर आता है. ओके, नंबर 2 इज डिस्क. डिस्क के भी यही दो अनमोल रतन. ये डिस्क सॉलिड डिस्क है एंड ये रही एक्सिस. आई होप आप देख पा रहे हैं. ये सेंटर ऑफ मास एंड मास m है, रेडियस r है डिस्क का. तो I कितना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन? MR square by 2. ओके, एंड सपोज आई हैव इट अबाउट द डायमीटर, व्हाट से? MR square by 4. वाह वाह, वेरी वेल, नाइस. फॉर्मूला याद है तो क्या हो तुम? वैसे जावेद अख्तर की गजल थी ये, जिंदा हो तुम वाली. सर वो कौन सा? वो कौन थे, वो कौन है, जिंदा है अभी भी वो? फरहान अख्तर के पिताजी. अब ये मत पूछना फरहान अख्तर कौन है, जावेद अख्तर का लड़का. So passing through any dia, कितना होगा यार, बता नहीं रहा है कोई. MR square by 2. बराबर है. ओके, hollow cylinder about its axis I mr square. एंड भाई अब ध्यान दीजिएगा, अब सॉलिड सिलेंडर आ रहा है. MR square by 2. MR square by 2. पर जरा सा रुक तू, मैं जानता हूं पसंद है तुझे mr स्क्वायर बाय 2, पर यहां एक, आधा कर दिया इसको. पर ये जो है वो, this is the axis, you know, this is the axis.
सेम इसके ऐसा ही है, बट ये सॉलिड सिलेंडर है। अभी मेरे को किसी ने बोला I इज इक्वल टू mr²/2, बराबर। बट अब अगर कोई तुमसे पूछे अगर कि ये एक्सिस है तो क्या कीजिएगा? इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लीजिएगा? कभी हाँ जी, हाँ सॉलिड है कि हॉलो है सिलेंडर? ये सॉलिड है, सबसे लास्ट वाला सॉलिड ही है, सॉलिड ही है, ओके सर। बराबर। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अगर किसी ने अभी बोला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो वर्क्स ओनली ऑन 2 डायमेंशनल बॉडीज लाइक प्लेट, डिस्क, रिंग एक्सेट्रा। ये तो 3 डायमेंशनल है। क्या करोगे तुम है? आप करोगे? मैं करूंगा ना, तेरे लिए तो जान हाजिर है, बस मांगना नहीं। मांगने का नहीं। तो ये सिलेंडर है, ध्यान से देखिए, नया फॉर्मूला आ रहा है। आई होप यू आर जॉटिंग थिंग्स इन योर बुक। एंड दिस इज द एक्सिस about which they have asked us to find the moment of inertia. The length of the cylinder is L and the radius is R. Then what is the moment of inertia of this cylinder? I shall write it in blue. Important for, नया चीज। मैं R को उठा करके यहां ले आऊं, वहां जगह की तंगी है थोड़ी। थैंक यू। I एम बाहर, मास बाहर सिलेंडर का L²/12 प्लस R²/4 है। कोई जो ये फॉर्मूला नोट कर रहा है? अच्छा, इस फॉर्मूला को देख के किसी और की भी याद आ सकती है आपको? किसकी आती है? अकेला अगर ml²/12 देखो तो किस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो I इज इक्वल टू m ब्रैकेट में L²/12 प्लस R²/4। ये फॉर्मूला जॉट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। मैं ये उड़ा रहा हूं। होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर का दोनों का फटाफट फॉर्मूला लिख लेते हैं। होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर जो है, अबाउट एनी ऑफ द डायमीटर्स पासिंग थ्रू द सेंटर, तो नंबर 5 इज होलोस्फीयर। Holosphere 2/3. Absolutely. Holosphere passing through the center. ये कोई भी ऐसा हो सकता है, ये सब सिमेट्रिकली है। सो I इज इक्वल टू 2/3 mr² एंड सॉलिड स्फीयर, आई एम नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर अ सॉलिड स्फीयर। बराबर। अच्छा, अब आती है बात रॉड की। तुम बोलोगे सर रॉड की तो सारी बातें थिन रॉड, रॉड की तो सारी बातें अफलातून है। आपने कितने केसेस देखे थे रॉड के बोर्ड में? 2? तीसरा कौन सा था? ये पहला। भाई ये रहा आपका सेंटर ऑफ मास। रॉड का लेंथ है L, मास है M। इतना जाड़ा भी नहीं है, वो लॉकडाउन में जाड़ा हो गया थोड़ा। तो इसका कितना था? और दूसरा जो आपने देखा था वो ये दिखा रहा हूं मैं आपको रॉड के 1 नहीं 2 नहीं 4 केस दिखाने वाला हूं। आई होप यू जॉटेड दिस डाउन पीपल। ओके, because we are going to use this today, huh? These are all new things. नई चीजों से पाला पड़ा है हमारा। पुरानी तो है ही साथ में, बट नई नई चीजें भी है, which make this much more interesting. So this was the first part. Second वाला यहां बनाओ, यहां बना देता हूं। ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास और ये तुम्हारा एक आध एंड, about its end, about one of its
ends, ये भी सबको पता ही है, I R squared by 3. ml square by 3. R नहीं पी के L। So मैंने उसको R कर दिया. हाँ ये बहुत बुरा किया तूने उसके साथ। अच्छा, अगर ये रॉड है, पीपल, rod length L, and the axis is neither like this nor like this, but like this. Then D. Yes, sir. This rod, this axis is passing through the entire rod. This is a thin rod. You won't believe it. Because it is a thin rod, you will say that all masses are lying on the axis, and the distance of the masses from the axis is 0. ये सारे मास एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 0. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये रॉड जाड़ा, भले जाड़ा दिखाया है पर वो जाड़ा है नहीं, पतली सल्ली जैसा है, एंड वो पतली सल्ली के थ्रू ही तुम्हारा एक्सिस पास हो रहा हो. डू यू अग्री ऑल मासेस आर लाइंग ऑन द सल्ली इटसेल्फ, ऑन द एक्सिस? People? Yes, sir. And what is the distance of each mass from the axis? 0. As a result, m into 0 ka square, the answer will be 0. So if the axis is passing through the entire rod, so इसमें लिखूंगा axis passing through the whole rod, तो moment of inertia is 0. And fourth, ये भी मस्त है, ये है आपका एक्सिस, ये आपका रॉड है, एक्सिस नहीं है, रॉड है, रॉड है। एंड सर एक्सिस दिखा दो आज। गंदी एक्सिस लग रही है, ठीक लग रही है? सर ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? क्या पॉसिबल कैसे होगा बेटा? एक्सिस बाहर और रॉड ऊपर। एक्सिस कौन डिसाइड कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना, सम कर रहा है ना। सम बोलेगा ना तेरे को कौन सी एक्सिस लेने की। सम नक्की करता है या तू नक्की करता है एक्सिस? तू बता। सम सर। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि सम ने मेरे को बोला है रॉड इज लाइक दिस एंड एक्सिस इज लाइक दिस। ये सिचुएशन है। अब आप मेरे को बताओ आप क्या करोगे, अब किस तरह किया जाएगा? अरे 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 अरे, फर्स्ट लुक एट द रॉड, लुक एट द रॉड। डू यू अग्री each particle of the rod is at distance r from the axis? Yes sir. First things first, each particle of the rod is at distance r from the axis. So can I draw this diagram again like something like this? ये मेरा पूरा rod जिसका मास m और ये है एक्सिस एंड ये डिस्टेंस है r। देखा आपने मैंने क्या कर दिया? ये पूरे रॉड को एक पार्टिकल बना दिया जिसका मास है m, मास m ऑफ द रॉड, एंड इट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। मैं ये इसलिए कर पाया बिकॉज ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रॉड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो आई कैन टेक दिस होल रॉड एज अ पार्टिकल ऑफ मास m विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r। एंड कोई भी पार्टिकल हो, अपने बेसिक को याद करो, कोई भी पार्टिकल हो जिसका मास m हो और वो डिस्टेंस r पे हो एक्सिस से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है बंधु? मास स्क्वायर। माय गॉड, is this absolutely agreeable people? All the four cases are different. This is the axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass, ml square by 12. This is axis perpendicular to the rod and passing through one of its ends, ml square by 3. Axis passing through the whole rod, the moment of inertia 0, and axis at a distance r from the rod, and this each particle of the rod is at equal distance from the axis. So मैंने इसको बड़ा m करा दिया and ये distance r पे, तो moment of inertia mr square. Is this absolutely agreeable? है कोई किसी को शक? Yes.
बिल्कुल, बात तो वही है, पर मैंने अभी तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया ही नहीं है भाई, मैं तो अभी तक लाया भी नहीं हूं। ओके, नहीं मैं कहाँ लाया हूं, मैं अब तक कहाँ बात करी है। हाँ तुझे पता है, ये बात अलग है, बराबर। एंड तू ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लगा सकता है ना, तू यूजुअली ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अलग अलग केसेस में लगाया, ऐसे केस में कभी नहीं लगाया तूने, तो लगा सकता है, आंसर तो मिल ही गया, बराबर है। सो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा एक और नई चीज दिखा रहा हूं, गेट रेडी फॉर नई चीज। आप ये दो चीजें जॉट कर लीजिए प्लीज, सातवीं चीज भी दिखा रहा हूं आपको। आज आज नई नई चीजें देखने का टाइम है, नया साल है ना आज, तो नए साल में नई नई आइटम दिखाता हूं आपको। आप पहले जॉट कर लीजिए फटाफट। हो गया सर। श्योर? Yes, sir. ओके, यस सर। तो रॉड देखा ना, ये 7वां नंबर था, यह है रेक्टेंगुलर प्लेट, सर बोले तो। हाँ, ये ब्रेथ है बी, ये लेंथ है एल, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ दिस सेंटर ऑफ मास, ये मैं डायग्राम में एक्सिस ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। एक्सिस is perpendicular to the plate and passing through the center of mass. If I were to make that diagram, let me see if I can make that diagram. सर इट्स ओके। Let me see. If I will not be able to make it, I will tell you I am not able to make it, darling. ये वो प्लेट है, उसका थोड़ा adjacent view दिखाया मैंने। Is this agreeable? सर Yeah. सर वो बीच का पोर्शन थोड़ा सा उठा दो। कौन सा बीच? एल के ऊपर वाला सर, तो लगेगा सर कि सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर है। आई डोंट अंडरस्टैंड, कौन से एल के बीच, क्या कह रहा है ये? सर पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के साइड से। ये है मेरी रेक्टेंगुलर प्लेट, बराबर, ये ब्रेथ बी, ये लेंथ एल, ये उसका सेंटर ऑफ मास, और इस केस में मैंने ऐसा कर दिया, बराबर। सो अब ये प्लेट ऐसी हो गई एंड एक्सिस इज लाइक दिस। नाउ यू अंडरस्टैंड द डायग्राम? Yes, sir. Perfectly. So this is a rectangular plate as you can see, and rectangular plate का length L है, breadth B है, and this is the axis which is perpendicular to the plate and passing through the center of mass. ऐसी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर, बता भी दो अब। I is m/12 L square plus B square. प्लीज जॉट दिस डाउन ऑल्सो, आज इसको भी इस्तेमाल करना है मस्त। ओके, तो आई थिंक मैंने जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें करनी थी वो कर दी, और अब पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को खत्म करूंगा और उसके न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा। तो चलो फिर, चलो चलिए, एक एक फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल दिखाऊंगा आपको, दिल खुश हो जाना है जी। Sir, બીજા એને કરવાના હાથ બુકમાં આપે છે. सूच है બીજા બધા મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા સોલિડ કોન ક્યુબોઇડ બધા वो सब की जरूरत नहीं है, वो सब की कोई जरूरत नहीं है, हमको इतने ही यूज करने हैं। पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस फटाफट उठा लेता हूं। प्राइमरीली फटाफट करने का काम यह है कि हमने ऑलरेडी देखा है इनको, सो देयर इज नथिंग न्यू। ये बॉडी है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, और ये एक्सिस है, एंड इसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसी। ये एक और पॉइंट है, लेट अस कॉल इट पी। ये एक्सिस है दूसरी, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, दिस एक्सिस, एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो क्या रिलेशन है आई, आई सी और डी का? आई इज आई सी प्लस एम डी स्क्वायर।
okay, where d is the perpendicular distance between the two axes, and m is the mass of the body. Ic is the moment of inertia about the center of mass. Second, and this perpendicular parallel axis theorem can be applicable to everything, anything. Perpendicular axis theorem is applicable only to laminar bodies, two-dimensional bodies. बराबर, याद रखना इतना. Only applies to two-dimensional bodies, and you know, laminar like plate, disc, etc., ring, etc. So suppose I have this ring out here, and the idea says that the ring is lying in the xy plane, let us say. So this is the x-axis, let us say this is the y-axis, and z-axis is perpendicular to the plate or the ring. Then the moment of inertia about the perpendicular axis Iz is equal to the sum of moment of inertia about x-axis plus the moment of inertia about the y-axis. और यहाँ सबसे important consideration याद रखना, z-axis is perpendicular to the plane of the body. Okay, this is a very important idea. ये axis perpendicular है to the plane of the body, that is why Iz is Ix plus Iy. Okay, is this agreeable? आगे चले. Can I take all this off now? Yes, sir. And I think I'll start doing a couple of sums on the way. Let us see what. I've got some really lovely, beautiful numericals lined up. But before doing that, Acha, let me tell you the number so that at least you can see, you can start having a look. I am looking at round 1 ka 6. Round 1 ka 6. I hope you've opened up. The chapter is rotational motion. Round 1 का 6. ये कौन आ रहा है? Okay. Round 1 का 6. Pretty simple diagram. As simple as it gets. And as simple as it looks. कभी कोई कमेंट करेगा आपको सब कुछ सिंपल ही लगता है, कभी हमारी तरफ से तो सोचो. वही तो सर. हाँ, पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो भी चीजें हैं जो सॉल्व करने लायक हैं वो सब सही तरीके से अगर करो तो वो आसान ही है. ऐसा तो है ही नहीं कि माय गॉड ये तो रॉकेट साइंस है यार. सर आप रॉकेट साइंस एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे. राउंड 6, राउंड 1 का 6. 3 particles each of mass m gram are situated at the vertices of equilateral triangle ABC of side L centimeter. ओके, पहले डायग्राम बना दे. अच्छा, उन्होंने इसको y बोला है, ये इसको x बोला है. क्यों ऐसा सर? उनकी मर्जी. इक्विलैटरल चचा. ये कौन सा पॉइंट है? यहां C है, मास m. ये A है, मास m. और ये B है. थोड़ा आगे ले ले इसको ताकि बीच में ट्रैफिक जाम ना. थैंक यू बड़ी. ओके भाई, इक्विलैटरल है तो ये एंगल 60 है, याद रखें. ये भी L, ये भी L, ये भी L. ओके, क्या चाहते हैं वो लोग हमसे? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन AX परपेंडिकुलर टू AB से परपेंडिकुलर है ये, एंड इन द प्लेन ऑफ ABC. ओके, इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इज सिंपल. चलो भाई, करेगा कौन है भाई? करेगा कौन? एक्सिस को ब्लू में डाल देते हैं क्योंकि बार बार एक्सिस को काले में रखे हैं. ये एक्सिस है आपकी. हाउ मेनी पार्टिकल्स डू यू सी? 3. 3. So moment of inertia of system
अबाउट ax, ये एक्सिस रही ax, I is moment of inertia of particle A plus moment of inertia of particle B plus moment of inertia of particle C. सबसे पहला चीज आइए, जीरो जीरो सर। अरे 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 इसको बहुत जल्दी है, जल्दी का काम शैतान का है बेटा। ओके सर। ओके, अब तुमने देख लिया है किस तरह किया है, लिखा है मैंने, मास ए, मास बी और मास सी तीनों इक्वली है, बरोबर। मैं शांति से कर रहा हूं ये, हियर मास ए, मास बी और मास सी तीनों एम है। ओके, आर ए इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एम ए फ्रॉम एक्सिस। Can you see this mass A? Isn't it lying on the axis itself? So as my man Divya rightly says, how much is the distance? 0. What do you think would be RB? एल Wow. So RB would be L because ये B यहां से कितनी डिस्टेंस पे है सर? L डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है एकदम चकाचक। ओके, एंड RC परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ MC एल बाई टू। दैट इज वन कॉकर। सर ये रहा MC और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जॉन है वो ये है RC। ओके, पर लावेंगे कैसे? अरे भगवान ने तुमको कंपोनेंट बनाना सिखाया था कि नहीं? यस सर, सिखाया है। हाँ, भगवान ने सिखाया हो ना हो। एल कॉस 30 डिग्री। L cos 60, ओ सॉरी 60। दिस इज L और उसका ये कंपोनेंट जो है दिस इज L cos 60 विच इज RC। सो RC आ गया आपका आंसर, L cos 60 and cos 60 is half. And what I'm going to do now is I'm going to put everything here. M into 0 का square plus M into L का square plus M into L by 2 का square, which gives me ml square plus ml square by 4. It is 5 ml square by 4. Check the answer. यस सर। Is that an option? 5 स्क्वायर बाय 4। सर शांति से देखोगे तो हर चीज आ जाएगी। हाँ हाँ, तो एल कॉस 60 डिग्री देने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि हमने ऐसे देख लिया तो आरसी उसके बगैर कैसे आएगा? L cos 60 के बगैर तो तेरे को किसने बताया कि ये इतना जो है वो L by 2 है? किसने बताया तेरे को? तेरे को कंपोनेंट से ही तो पता चला। हाँ सर, अगर सी से हम अगर कोई भी लाइन ऐसे ले तो बीच में मिड पॉइंट पे आएगी तो फिर वो हाफ ही होगा। you are telling me a geometrical concept and I am telling you the practical idea. आप ये भूल जाते हैं कि सपोज अगर ये एक्सिस लिए होते तो क्या फिर भी आपका L by 2 ही होता? नहीं ना, तब ये होता ना आपका RC। हाँ सर। उस मौके पे क्या करते? ऐसा है 60 डिग्री। राउंड 1 का 9 RL है। 3 आइडेंटिकल थिन रॉड्स, 3 पतली डंडियां, each of length L and mass M are joined together to form a letter H. Okay, what is the moment of inertia of the system? This is the most important statement, people. What is the moment of inertia of the system about one of the sides of letter H? Sir, बोले तो पहचानो, डंडियों को पहचानो। सर लेडर दिया हुआ है। हाँ, तो लेडर होगा यार, पर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा एच का है। भाई मैंने भले जाड़ी डंडियां बनाई है पर ये पतली है, माइंड वेल। ओके, इसको मैं कहता हूं नंबर 1, इसको कहता हूं नंबर 2 और इसको कहता हूं नंबर 3। ओके, मुझसे क्या पूछा?
Find the moment of inertia of the system about an axis passing through one of the sides of H. ब्लू कलर में एक्सिस आ रहा है बंधु. ये है आपका एक्सिस. ओके भाई, कितनी डंडियां हैं? 3. कितने मासेस हैं? 3. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, द ब्लू कलर्ड एक्सिस. भाई क्योंकि 3 आइटम है तो I इज I1 प्लस I2 प्लस I3. नाउ लुक एट नोवेयर, लुक एट नंबर 1 का डंडी. ये नंबर 1 का डंडी एंड ये वो एक्सिस जिसके थ्रू हमको फाइंड करना है. व्हाट डू यू थिंक विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डंडी अबाउट दिस एक्सिस? 0. इज दिस अग्रीएबल? बिकॉज all the masses are lying on the axis. As a result, this is 0. अच्छा, I2 मतलब मैं भी नहीं है. ये तेरा नंबर 2, लेंथ L है इसका, एंड ये थोड़ी एक्सिस है ना. ये नंबर 2 की डंडी और ये रही एक्सिस. क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका? ml square. सॉरी, ml square. Is that right or is that true or what? Tell me, gentlemen, ladies. What? Anybody? सर ml square by 4 हो सकता है सर, सेंटर ऑफ मास पे हो तो. सर ml square by 3. Isn't this axis passing through one of the ends of the rod? ml square by. If the axis passing through one of the ends of the rod, then the moment of inertia of the rod will be ml square by 3. I don't know who is saying ml square and ml square by 4. What prompted you to say ml square by 4, Divya? What? This was the axis passing through one of its ends. And now let's look at 3. ये 3 है. And this is your axis. Yes sir, इसका ml square. How far is rod 3 from the axis? Isn't it length L? And since all particles of this rod are at equal distances from the axis, the moment of inertia about this axis of rod 3 is, as Maman rightly says, ml square. Are the diagrams okay enough? बात समझ में आ रही है आपको? Okay sir. कोई शक? Okay sir. No sir. आंसर भी आ गया सर. So total moment of inertia of system is I is equal to I1 कितना है? 0. I2 कितना है? ml square by 3. And I3 कितना है? ml square. So this becomes 4 by 3 ml square. You might as well check the answer, please. Okay. Okay. Now I am looking at this beautiful thing. Round 2 का 22. Round 2 का 22. What is the moment of inertia of a solid sphere of density rho and radius r about its diameter? You will tell me, sir, moment of inertia solid sphere everybody knows, 2 by 5 mr square. But यहाँ पे आंसर मास में और उसमें मास में नहीं लाने का है. राउंड 2 का 22. रो में डालेगा ना सर. रो में लाने का बाबा. फॉर solid sphere, I is 2 by 5 mr square. Everybody knows. And axis passing through diameter. Everything is good. Now, density is mass per unit volume. So, how much is mass? Isn't it density into volume? And what do you think is the volume of a solid sphere? 4 by 3. m को उठा करके रो 4 by 3 पाई r क्यूब इधर रखने का है. इधर
क्या आप रख पाओगे? कुछ कर पाओगे? यस सर। अच्छा, नहीं तो मैं करता हूं इतनी जगह उड़ा करके, बस थोड़ी सी जगह चाहिए अपने को चादर फैलाने के लिए, जगह मिल जाए तो धमाधमी। मास की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब द होल इंटू आर स्क्वायर। अब मैंने आंसर में ऑप्शंस में देखा तो पाई का जिक्र नहीं था, सो आई वॉज इन अ लॉस। 2 4s are 8, 5 3s are 15, rho pi into r raised to 5. This was my final answer, but I could not find pi in the answer. Rho और r raised to 5 था, तो इसका मतलब मेरे को समझ में आया कि they want us to write pi as 22/7. I hope you know pi की वैल्यू बरोबर है ना भाई? सही है वैल्यू ऑफ पाई? यस सर। मिल गया सर। 22 8s are 176, 15 7s are. 105. Is someone checking the final answer? Yes. यस सर, वी गेट। Get it? Okay. Now let's try something different. कुछ जो नई नई चीजें हमने देखी है, वैसे ये भी नया ही था, पर एकदम नई नई चीजें आपने देखी हैं, उसके साथ एक आध न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूं। ओके, मैं नंबर बता देता हूं आपको। नंबर यू कैन सी राउंड 2 का 1, ये वो सॉलिड सिलेंडर के साथ मेल खाएगा जो हमने देखा था यहां पे कहीं पे, सॉलिड सिलेंडर। बहुत शांति से पढ़िएगा, हो सके तो डेटा साथ में लिखने की ट्राई कीजिएगा। सर राउंड 1 का ही ना? राउंड टू का 1, राउंड 2 का 1। ये सारे न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं फ्रॉम अरिहंस मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स बाय डीवी सिंह। ओके, हो सके तो एक अदर डायग्राम बनाए, देखें क्या हो सकता है। ओके, पहले न्यूमेरिकल तो जॉट डाउन करें क्या कहता है। ओके, न्यूमेरिकल राउंड 2 का 1 ये कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ मास m about an axis passing through its edge and perpendicular to the axis of the cylinder when its length is 6 times the radius or is. ओके सर, क्या कहा इंग्लिश में, इसने कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए तो मैं हूं। मैं पहले आपको डायग्राम दिखा दूं, क्या फाइंड करना है बता दूं, फिर वील गो अबाउट फाइंडिंग द स्टफ। ओके, ये है आपकी लेंथ विच इज इक्वल टू 6 times द रेडियस, एंड दिस इज योर the axis passing through this is the axis of the cylinder, not the axis about which moment of inertia is to be found. Moment of inertia is to be found about an axis passing through its edge and perpendicular to the axis of the cylinder. So perpendicular to the axis मतलब ऐसा, but we don't want it like this, we want it to be passing through the edge. This is the required axis. Isn't it perpendicular to the axis of the cylinder? Yes sir. And isn't it passing through one of its edge? Yes sir. पर सर आपने पहले जैसे ही मुसीबत में डाल दिया। आपने जो हमको बताया था वो ये था, है ना, हमने जो यहां पे डायग्राम देखा था वो ये लाल कलर की एक्सिस वाला था। अब आप बोल रहे हो ये नहीं चाहिए, हमको ब्लू वाली चाहिए। यार सर आप है ना ये बहुत चेंज करते रहते हो यार, बहुत डेंजरस। एक सेकेंड बिफोर आई से एनीथिंग और बिफोर एनीबडी सेज एनीथिंग, डू यू अंडरस्टैंड द डायग्राम? फर्स्ट क्वेश्चन। No, sir. मैं वही पूछ रही थी। यस सर। अच्छा Yes, sir. एक सेकेंड। दिस इज अ सिलेंडर जिसका लेंथ 6 times रेडियस है एंड रेडियस उसका ये है r। कोई भी सिलेंडर का एक्सिस क्या होता है? द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द ज्योमेट्रिकल सेंटर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर।
Okay? PK, this much is okay. They have asked us to find the moment of inertia about an axis perpendicular to the axis of the cylinder. Perpendicular मतलब ऐसा, बराबर? बरोबर सर. And passing through the edge of the cylinder. This is an edge, this is an edge. So मेरा एक्सिस जिसके अक्रॉस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो ये ब्लू कलर का एक्सिस है. क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल. crystal clear. एंड नाउ अब सर आपने ऐसा कुछ तो हमको करने को बताया नहीं. आपने जो बताया था ये सिलेंडर है एंड दिस वाज द एक्सिस जिसका नया फॉर्मूला आपने दिया था. तो इसके अक्रॉस हम फाइंड कर पाएंगे. इसके अक्रॉस कैसे करें? Parallel axis theorem. My man. So let us call this as IC. I'm just calling it IC. And this would be I. And ये डिस्टेंस तो हमको पता ही है. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले मेरे पास IC होना चाहिए. डू वी हैव IC? I square not here. Yes, sir. Moment of inertia Square by 12. about an axis perpendicular to axis of cylinder and passing through its center. सर जेई में ये सब लिखना जरूरी है? नहीं बेटा जरूरी नहीं है. पर तू घर जाके जब पढ़ेगा ना, आई डोंट वांट कि तू मेरे को गालियां देना शुरू करेगी. क्या कुछ लिखा ही नहीं है, धमा धमी मचा दी. आईसी का इक्वेशन m Bracket में L square by 12 plus R square by 4. मस्त स्टैंडर्ड, बराबर. ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन. नाउ बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं सर अभी यहां पे सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? L इज इक्वल टू 6R एंड में करेंगे ना. I इज IC प्लस MD स्क्वेयर. Square. तो IC how much is this? What is the perpendicular distance? Isn't it L by 2? L by 2, yes, sir. And now does it look like a lovely idea? Yes, sir. Now put तुमको इसी वक्त put 6R. जी सॉरी. Or L square by 4. ए हाँ सॉरी माय मिस्टेक. वो कभी कभी बोलते बोलते माइंड में वही होता है बट लिख कुछ और देते हैं, तो ये बोलने का लफड़ा रहता है. m इंटू 6R स्क्वायर बाई 12 प्लस MR स्क्वायर बाई 4 प्लस m 6R द होल स्क्वायर बाय 4. लेट अस ओपन अप. 6 का स्क्वायर 36. ये बेचारा MR स्क्वायर बाय 4 ही रहा. एंड 6 का स्क्वायर 36 times square बाय by 4. 36 by 12. 36 are 36. Very good, beta. I am proud of you. LCM एंड में ले लूंगा. एंड 9 MR square. बाई 9 प्लस 3 12 MR square. 12 4s are 48 48. plus 1. 49 MR square by 4. Is it a viable option? Kindly check. Yes, sir. Option D. D option, sir. D. अरे डी हो या सी सानुकी. वही sir. आंसर आ गया जी मालको. आंसर आ गया मालको. ओके भाई मैं चाहता हूं एक और चीज करना. क्या राउंड 2 का 52 इजाजत दोगे ये करने की? राउंड 2 का 52 आज एकदम धमाकेदार किए सारे. आप इसको देख लो, मैं उड़ा देता हूं. राउंड 2 का 52. Diagram is the key. You know, the people, you don't understand that thing. You think the solution is the key. No, the solution is not the key.
द डायग्राम इज द की। अब मैंने डायग्राम उड़ा दिया, अब इसमें से एक भी चीज आपको समझ में आएगी? नो सर। पॉसिबल है? एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ सम इमेजिनेशन। थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़ा सा पढ़ाई कि अच्छा क्या लिखा है, एक एक वर्ड पढ़ूं, और फिर थोड़ा सा एप्लीकेशन। बट अकेला एप्लीकेशन ना चले बगैर इमेजिनेशन और नॉलेज के, बरोबर? तो आप सोच रहे हो आंसर हमको सब कुछ बताएगा? भाई आंसर कुछ नहीं बताएगा, सॉल्यूशन कुछ नहीं बताएगा। आपको जो भी बताएगा वो डायग्राम बताएगा, क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा बैठा है। आई होप राउंड 2 का 52 आपने पढ़ना शुरू किया है। यस सर। अच्छी बात, ये तो एकदम मिलिट्री एकेडमी की तरह चलो। यस सर, जवान सारे तैयार? जी श्रीमान। ओके, क्या कहता है ये सब? कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। ये रही यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। शायद लग नहीं रही होगी, पर है, पर है, मान लीजिए, यकीन मानिए है। तू जानता नहीं पर तू है। ओके, साइड ए, ये भी ए है, ये भी ए है। ये रेक्टेंगुलर प्लेट का फंडा यूज हो सकता है ना यहां पे? बिल्कुल, मास है। लेट्स सी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स। हरे राम कृष्ण। यस सर। ये तो वो सेंटर था, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, और उन्होंने जो मांगा है वो एक्सिस इधर से पास हो रही है। तो सर इसका डायग्राम कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? ओके, मैं कोशिश करता हूं इस डायग्राम को साफ तिल बनाने की। सर ये क्या बना रहे हैं? पता नहीं, जैसे ही बन जाएगा तो टेस्ट कर लेना, पता चले क्या है। ये वो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, बराबर? एंड उन्होंने तुमसे मांगा है ये एक्सिस, लेटर से पॉइंट, ये सी लेटर से, भाई क्या कीजिए, शिट, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या मुझे नहीं बताना चाहिए था? बता दिया सर। सब बता दिया मैंने, पर इतनी जल्दी आपको वो नहीं करूंगा। ये अपनी प्लेट है, ओके, इस पे नाम लिखा है कुशल। कुशल, ये प्लेट है, स्क्वायरिश प्लेट है, समझिए इसको, ये ए भी है, ये ए है। हमने इसके थ्रू, इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था। यू रिमेंबर m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब उन्होंने इसके थ्रू नहीं मांगा है, उन्होंने इसके थ्रू मांगा है। लेट अस से ये रहा, ये जो पॉइंट सी है, तो ये दो एक्सिस कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। ये मुझे एक्सिस चाहिए, इसके अक्रॉस है मेरे पास। भाई कौन सा एक्सिस थ्योरम लगेगा? पैरेलल पीके। सबसे पहले अपने को पीके को पूछना पड़े। पीके, आर यू अग्रीएबल विद द डायग्राम? यस सर। डायग्राम समझ में आ रहा है? हाँ सर। यू श्योर? तेरी हाँ में थोड़ी हेजिटेशन नजर आ रही है। ना सर। तो एक स्क्वायरिश प्लेट है, सब कुछ भी करने से पहले ये जो एक्सिस है इसके अक्रॉस एम आई ऑफ प्लेट अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane and passing through a corner is, by parallel axis theorem, I is IC plus MD square. Here IC is moment of inertia about axis perpendicular to plane and passing through center, जिसका वैल्यू हमको मालूम है m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर यहां पे L भी ए है, B भी ए है। हियर L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर m/6 a square।
And the most critical thing is this: D is the perpendicular distance between the two axes. Can anyone tell me? Actually, it is this. This is D. ये point और ये point. Anyone tell me how much this is supposed to be? A by root 2. ये पूरा है देखा सर? a root 2 और इसका आधा a root 2 by 2. So D is a root 2 by 2. नहीं, मैंने नहीं देखा अब तक. सर वो मैंने 45 डिग्री करके किया सर। मैं पाइथागोरस लेके सोच रहा हूँ, तू वो लेके कर रहा है. ओके, तेरी मर्जी बेटा, तेरी मर्जी, तेरे को जो अच्छा लगे. पुट 2 and 3 in 1. एकदम रेडी. हॉट एंड सार सूप आपका रेडी है श्रीमान. गर्मा गर्म पी लो. a by root 2 the whole square, ma square by 6 plus ma square by 2. यहाँ पे 3, यहाँ 3. 3 plus 1 is 4. 4 ma square by 6. I think my answer boils down to 2 by 3 2 by 3 m square। ma square. What say people? What say? For D sir, D sir, option D। I love D. Okay. So I think काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमने धमाधमी मचा दी. एंड इसके कमेंट्स में आपको होमवर्क भी मिलेगा जो ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का मिश्रण है. प्लीज यूज योर इमेजिनेशन एंड वर्ड्स को एक एक शांति से आराम से पढ़े ताकि एग्जैक्टली आइडिया है कि करना क्या है, एंड उसके बाद करें. नई नई चीजें हैं, ये आपने टेक्स्ट में कभी नहीं देखा, बोर्ड के लेक्चर्स में कभी नहीं देखा ये सब. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिलीव मी, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, एटलीस्ट फॉर जेईई नीट. हर बार एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ला ही देते हैं. सो बी रियली केयरफुल एंड प्लीज डू दिस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल दैट टाइम कीप सॉल्विंग. टेक केयर. बाय बाय.